Can start the class. Welcome to today's class. Okay, what we will study today or what we will discuss? What has been discussed in the previous class? In the previous class, we have discussed histogram. Under the graphical representation of data, we have discussed histogram. What is histogram and how to draw histogram? And in graph, when we are drawing histogram, frequencies are drawn in which axis and class intervals are drawn in which axis? କୋଉ axis ରେ କୋଉ ଅକ୍ଷରେ class interval put କରାଯିବ କୋଉ ଅକ୍ଷରେ frequency put କରାଯିବ it is there that histogram ରେ ଆମେ x ରେ class interval ଲେଖୁ ବା draw କରୁ ଆଉ y axis ରେ ଆମେ frequency draw. Okay, and we have given some examples. Okay. Before discussing frequency polygon, let me clarify your doubts. In the previous class, that means in the yesterday, I have given one assignment to you in the WhatsApp group. One frequency table is given to you, and on the basis of that frequency table, you have to draw a graph. A graph means you draw a histogram. You have to draw a histogram in chart paper. That means in graph paper. But some of you are drawing the graph in plain paper. It's good. That doesn't mean why you are drawing graph in plain paper, but you practice it. First of all, प्रथमे तमे practice करो. After practicing, go to the graph paper and also practice in graph paper. Graph paper भी practice करो. Okay. And when you are submitting the assignment to me in my personal WhatsApp number, you must send that chart in graph paper, that histogram in graph paper, better. Okay, it is better for you so that what the exact problem you are facing, I can find out from that graph paper. When you are ତମେ ଯଦି ଗ୍ରାଫ ପେପରରେ ମତେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ସବମିଟ କରିବ ତାହେଲେ ତମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କୋଉଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରୁଛ ମୁଁ ଇଜିଲି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବି ଷ୍ଟିଲ୍ ତମେ କିଛି ଜଣ ଗ୍ରାଫ ପେପରରେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦେଇଛ କିଛି ଜଣ ପ୍ଲେନ ପେପରରେ ଦେଇଛ ଫ୍ରମ ଦ୍ୟାଟ submission of that assignments, I got some doubts of yours. ତମର କିଛି doubt ମତେ feel ହେଲା you are in that confusion. ତମେ କୋଉଠି କୋଉଠି confuse ଅଛ. Let me clarify that things first. ମତେ ପ୍ରଥମେ ସେଇଟା ହିଁ clarify କରିବାର ଅଛି. ସେଇଟା ତମେ clarify ହେଇଗଲେ ଆଉ ତା ଭିତରେ ସୋନିଆ ତମ doubt ମଧ୍ୟ clear ହେଇଯିବ. Okay. In order to clear those doubts, first of all we must understand the graph paper. ग्राफ पेपर को मत प्रथमे बुझीपार अछि. ओके ग्राफ पेपर को तुम भल भाबरे यू हैव नोटिस्ड इट. ओके भल भाबरे देखो मु तुमको ग्राफ पेपर वर्तमान देखौछि शो करूछि. ग्राफ पेपर रे लास्ट टाइम कहिथिली देयर आर two types of lines. Some lines are horizontal lines and some lines are vertical lines. What are the vertical lines? You know better. What are the vertical lines? These are the vertical lines. Okay, these are the vertical lines and these are the horizontal lines. Okay, you know. And a number of vertical lines are there and number of horizontal lines are there. And if you minutely observe the graph paper, there are some dark lines are there. Sorry, some dark lines are there. These are the dark horizontal lines. Dark. That is ଟିକେ ବେଶୀ ଗାଢା ଗାଢା ଦେଖା ଯାଉଛି. These are the horizontal and these are the vertical. Sorry, भूल ଟିକେ ହେଇଯାଉଛି. These are the dark. This is the dark. This is the dark. Okay. These are dark. Dark vertical line. ये गाढ़ा रहिଛି ଯୋଉଡାକ ଆଉ କିଛି light color ଅଛି. What are the light colors? You may clearly see these are the light color horizontal lines. A light color here, here, and if you minutely see, there are light color vertical lines are there also. Okay,
if minutely you see. Okay, ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କିଛି light color horizontal lines vertical lines are there, କିଛି dark color horizontal and vertical lines are there. Okay, ଆଉ ଯଦି ଆମେ exactly ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଖ there are a big square is there and within that big square small squares are there. Big square ମାନେ ବଡ ବଡ ଚାରିକଣିଆ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଦେଖ ଯେମିତି କି ଏଇଠି ଦେଖ ये बड़ बड़ टे बड़ साइज रही वर्गक्षेत्र ये सब प्राय ये टे बड़ क्षेत्र रही सब अच्छे बहुत गुड़ा अच्छे ओके ये बड़ बड़ आ प्रत्येक बड़ बड़ वर्गक्षेत्र भितर देखिए छोट 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 कौन वर्गक्षेत्र अच्छे तो यहाँ आम माइन्यूटली ऑब्जर्व करवा दरकार मु कहीं कथा कहूँ आम जिते ग्राफ जो whatever may be the graph may be histogram it may be frequency polygon or jive or anything else आम जहाँ भी ड्रॉ करवा we must have focus on this dark line ऊपर टिके हमको अधिक फोकस करबा पड़ो आम जिते नंबर को लेके अज्यूम करूचे ग्राफ रे अज्यूम करके सब नंबर पुट करूचे अज्यूम माने अजम्पशन मने करके नौचे आमे सब बेले कौन करबा हमको अजम्पशन ने ये जो डार्क लाइन ऊपर बेसिस पर काम अधिक करा जाए नॉट दैट जे लाइट कलर लाइन ऊपर हमें किछ ड्रॉ करबा नहीं करबा व्हेनेवर देयर इज नेसेसरी हमें लाइट कलर लाइन को मध्य यूज करबा किंतु मैक्सिमम टाइम आम टिके डार्क कलर लाइन यूज कर आ जते देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करूचे देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ हेची दीटा जाक आम डार्क लाइन में ही ड्रॉ करूचे ओके डार्क लाइन में ही ड्रॉ करबा आ जते बेले आम कोन करबा तादरे पॉइंट्स गुडा मार्क करूचे देखो हियर पॉइंट्स आर मार्किंग पॉइंट मार्क दिया जायछि तुम देखो मैं प्रथमे तुम पॉइंट मार्किंग करेछि पॉइंट्स आर ऑलवेज हियर using the dark lines okay dark line गुड़िक ही यूज करा जायछि देखो dark line रे ही रखिछि ओके फर्स्ट हमें पॉइंट जदी दे दबो हमको तापर लिखिबा पाई बोथ साइड रे फ्रीक्वेंसी साइड रे दैट फ्रीक्वेंसी साइड मींस इन ओ वाई साइड एंड ओ एक्स साइड रे हमें प्रथमे पॉइंट्स मार्किंग करबा पॉइंट मार्किंग कला बेले हमें बेसिकली डार्क लाइन को यूज करबा because it is visible more एटा टिके अधिक visible देखा जाउछि हमें सेटा को ही बेसी फोकस करले ठीक हबो नॉट दैट जे हमें लाइट कलर लाइन यूज करले भूल हबो नाही बट प्रॉब्लम बहुत फेस करबा काउंट करिया को पड़बो हैरान हबा को पड़बो परिश्रम करिया पड़बो स्टैटिस्टिक्स जदी हमको बहुत दिन से इजी करूछि बोले हमें जानु छे स्टैटिस्टिक्स नेक्स्ट द एक्टिविटीज मोर इजी तला हमें काहे डिफिकल्ट को इनवाइट करबा तो आम जोड़िक बेसी भिजिबल होची सेठी पॉइंट गुड़िक रखा ओके नेक्स्ट व्हाट आई फेस यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स मते लागिला तमे किछि प्रॉब्लम फेस करूछो म क्लास इंटरवल को नेकी प्रथमे जाउछि आमे हिस्टोग्राम जेतले ड्रॉ करूछि हमरो एक्स एक्सिस रे कोन करा जाउछि ना क्लास इंटरवल पुट करा जाउछि ओके क्लास इंटरवल 10 रु 20 20 रु 30 30 रु 40 40 रु 50 एमती लिखुछि ना एठी देखो सोनिया तम डाउट मध्ये एठी क्लियर हबो आमे जेतो इनक्लूसिव माने कर एटा एक्सक्लूसिव 10 रु 20 20 रु 30 30 रु 40 जोटा करूछे 10 भी दुई थर होछि 20 भी दुई थर आसुछि वन लोअर लिमिट रे फर्स्ट क्लास इंटरवल लोअर लिमिट अपर लिमिट रे लोअर सॉरी अपर लिमिट रे 20 रहउछि पुणी अगेन सेकंड क्लास इंटरवल नो लोअर लिमिट रे 20 रहउछि किंतु यू हैव टू पुट द नंबर वंस इन ए ग्राफ पेपर थरे ही हमको पुट करबार अछि जदियो 20 दी थर आसुछि जेतला हम एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल रे दुई थर 20 लिखाई थिबो दुई थर 30 थिबो दुई थर 40 थिबो दुई थर 50 थिबो किंतु हमको वंस थरे ही लिखिबार अछि 20 ओके तो 30 रु थरे ही लिखबा 40 थरे ही लिखबा 50 थरे ही लिखबा जहाँ भी लिखबा तेणु से वरीड होनी हमको वंस गोटे जगह गोटे ही नंबर दे पारे सेटा क्लास इंटरवल लिखिला बेले सेटा इंक्लूसिव क्लास इंटरवल तार इंक्लूसिव क्लास इंटरवल मीनिंग सेटा कहूछि सेटा दुई थर लिखा जिवो आकु
ଏଥିରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ରେ କଣ କୁହାଯାଇଥିଲା ନା ଅପର ଲିମିଟ ଟାକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମିନିଂ କହୁଛେ ଅପର ଲିମିଟ କୁ କାଉଣ୍ଟ କରାଯାଉନି, ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ କରାଯାଉନି, ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ କ୍ଲାସ ଇଣ୍ଟରଭାଲ। ଓକେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଗ୍ରାଫରେ ୱାନ୍ସ ଥରେ ହିଁ ପୁଟ୍ କରିବାର ଅଛି। କ୍ଲିୟର? ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୁଟ୍ କରିବା 10, 20, 30, 40 as usual ଯେତେ ଆମର ଡାଟା ଥିବ ଯେମିତି ଥିବ ଆମେ ସେମିତି ପୁଟ୍ କରିବା। ସେକେଣ୍ଡ, what other thing? ଦେଖ ଏଇଠି ତମେ କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଛ, ଯେତେବେଳେ 10, 20, 30 ଅଛି ଆମେ ରଖିଦଉଛେ ଇଜିଲି, but when there is a point ଆସି ଯାଉଛି we are confusing. Okay, don't be confused. As like here you are putting the number, here also you can put that number. Okay, 9.5, 14.5, 19.5, 24.5, 29.5. Which is not necessary. No problem is there. Okay, this is also easy. Then what other things? Here is another type of data. ସବୁବେଳେ ଯେ ମନେ ରଖ ଯେ 10 ରୁ ହିଁ ପିଲାମାନେ 0 ରୁ 10 ମାର୍କ, ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଯେ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ 0 ରୁ 10 ର ମାର୍କ ସ୍କୋର କରୁଥିବେ ଏମିତି କିଛି ହାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ରୁଲ ନାହିଁ ଯେ ପିଲାମାନେ 0 ରୁ 10 ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେ ପିଲା ଥିବ, କି 10 ରୁ 20 ପାଞ୍ଚଟା ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଥିବେ। ମେ ବି ଲୋଏଷ୍ଟ जो आमे हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर रेंज काढुଥିଲେ माने पता रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर में भी लोएस्ट स्कोर फॉर एग्जांपल 40 ରୁ 45 ଭିତରେ ଆସିଛି। ओके, केवल 40 गोटे लोएस्ट स्कोर ଆସିଛି, हाईएस्ट स्कोर 60 ଆସିଛି। तो मोर क्लास इंटरवल एई भଳି हो 40 ରୁ 45 गोटे ने 45 ରୁ 50 ने 50 ରୁ 55 55 ରୁ 60 60 ରୁ 65 एई भଳି भाबरे जीवो। तो मते जदियो 40 आरंभରୁ 40 आସୁଛି तार माने नुहे जे एटा एटा को 10 नेबी एटा 20 नेबी एठी भी 30 लेखि 40 एउठू स्टार्ट करिवि। इट इज नॉट लाइक दैट। मैं एउठू ही स्टार्ट करिवि बोले कोनोसी हार्ड एंड फास्ट रूल नाही, हमें स्टार्ट करिबा एठू ही 40 से स्टार्ट कर परिबा। और 5 5 लेखे गैप रखि छु 40 ରୁ 45 45 ରୁ 50 50 ରୁ 55 60 आउ थिबो निश्चित मोर जे ग्राफ से जति जगह अछि मु सेति पुट करछु 65 हबो। देन यू कैन राइट अकॉर्डिंगली। बुझियला? एठी आउ गोटे डाउट तो नहीं, एठी गोटे क्लारिफिकेशन मु देबी टिके परे देबी। ये गला हमर क्लास इंटरवल पर। ओके, एबे हमें आसीबा फ्रीक्वेंसी। अर्थात आम ओ वाई एक्सिस रे जो फ्रीक्वेंसी लेखुचे हमर किछि पिला मानकर डाउट रहउछि फ्रीक्वेंसी केमति पुट करबा। ओके, फ्रीक्वेंसी पुट कला बेले सब बेले देखिबो जे मोर किभଳି भाबरे फ्रीक्वेंसी आसी। बहुत अधिक फ्रीक्वेंसी रहउछि, बहुत पिला गोटे पर्टिकुलर नंबर को बहुत पिला रखुछंती बा पर्टिकुलर रेंज भीतर बहुत गुडे पिला रहउछंती ना कम पिला रहउछंती। मते ताकू आखि अगर रखी whether 1 2 3 4 5 6 7 एमती 1 गैप नेबी ना ताठू अधिक केते केते गैप नेबी इन y एक्सिस। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। तम माने भूल करूछ जानी पारुनो। देखो आमको देखो एठी जो घर गुडी तो अछि, देखो एठी जो छोट छोट घर कोथली छोट छोट लाइन अछि आ बड़ बड़ हॉरिजॉन्टल लाइन अछि। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन को तने क्लास इंटरवल ले कन्वर्ट करते हम सब बड़े हॉरिजॉन्टल लाइन को फ्रीक्वेंसी रे काउंट करते। ए जो प्रत्येक घर छोट छोट 10 टा अछि। ओके, ये 10 टा रहउछि एमती एठी 10 टा एठी 10 टा, here 10 here 10 here 10 here 10 here 10 here 10। आमे कोन करूछे बेले बेले पिला माने भूल कोन करूछंती ना एठी 10 ही लिखि दउछंती। फॉर एग्जांपल एठू 10 तापर 20 30 40 50 60 70 लिखुछंती, बट हमरो फ्रीक्वेंसी एते दरकार नाही, हमरो 7 पर्यंत दरकार अछि। यदि 10 एठी रखिली मने करो तो एठी ही 2 3 4 एठी जदि हबो मु जेतले करिवि मने करो एठी देखो एठी जदि मु ड्रॉ करिवि हिस्टोग्राम एते ही भीतर ही रहबो। एई भଳି भाबरे ही जीवो। एथिरे किछि क्लैरिटी देखा जीवनी, एबिटी हिस्टोग्राम रे किछि क्लियर देखा जीवो नै जदि मु एठी 10 लिखि। कारण मोर 7 भीतर ही फ्रीक्वेंसी अछि ना, मते एठी कोठी गोटे 7 अधिक थिबो। एई भଳି भाबरे एई प्रकार रो हिस्टोग्राम ड्रॉ कले इज नॉट क्लियर।
ओके तेणु फ्रिक्वेन्सी को आखि आगे रखी मु केते केते हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी केते अछि ताको आखि आगे रखी मु हाउ मच गैप विल बी टेकन इन द y axis it will be decided केते गैप ने हाउ मच गैप ओके एठी मु प्रत्येक 10 यूनिट को गोटे यूनिट भाबरे काउंट पुणी आउ 10 यूनिट को आउ गोटे 2 एगेन आउ 10 यूनिट को 3 एई भली भाबरे हमें फ्रिक्वेन्सी नबा तेणु खाली जे 1 2 3 4 नहीं परिबा 1 1 गैप नबा बोले सेमती नाही हमें 2 2 गैप नहीं परिबा 2 4 6 8 10 ओके दिस इज 2 2 4 6 8 10 इथरे 2 2 गैप रहउछि ए भली भी नहीं परिबा देखे taking into consideration your highest frequency मोर एठी highest frequency may be more than 12 or 14 ହେଇଥିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 2 2 gaps ନେଇଛି okay then what are the things I may take the gap also 5 5 gap ମଧ୍ୟ ନେଇ ପାରିବି ଯଦି ମୋର highest frequency ଅଧିକ ରହୁଛି 35 କିମ୍ବା 40 ଯଦି gap ରହୁଛି ମୁଁ 5 5 5 5 gap ମଧ୍ୟ ନେଇ ପାରିବି that is 5 10 15 20 अर्थात मोर प्रत्येक एई 10टी जो horizontal line को 5 लेखे काउंट assume मन रखो always we are when we are plotting the graph in graph paper we are assuming ଆମେ assume କରୁଛେ assumption नउछे assumption भाबरे ଆମେ को ये 5 यूनिट ये 5 यूनिट ये 5 यूनिट ये 5 ओके खाली जो 5 नहीं परिया नुहे we can take the help of 10 10 10 also 20 20 20 तुमको खाली एमती एग्जांपल दे दोछि ए भले भाबरे हमें कोन करबा देखिबा हमर फ्रीक्वेंसी केते अछि जदि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मन कर कोनोसी गोटे जगह हम देखा 95 हाईएस्ट रहला किछि गोटे पर्टिकुलर रेंज रे 10 रु 20 भीतर 95 पिला रहि जाय छै तो 95 तो मु एठी लेखिबा मते वेरी डिफिकल्ट होबे isn't it एठी जदि मु 1 रू स्टार्ट करिवि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मी एठी 1 2 3 जदि एमते लेखिबि एठी 95 केते करिवि हे परिबो नाही इट इज नॉट पॉसिबल किंबा 2 2 गैप नेले भी 95 रे कंप्लीट हे परिबो नाही 2 2 एरे 2 4 2 4 6 8 10 12 हबो नाही केबे हेले ग्राफ पेपर एते बड़ साइज ग्राफ पेपर आसे नाही तो ग्राफ एते बड़ करा जाय ही नाही गोटे मिनिमम स्टैंडर्ड साइज इज देयर इन ग्राफ पेपर तेणु मोर अजम्पशन टा ही इंपोर्टेंट तेणु मु जते बेले 95 फ्रीक्वेंसी रहूची देखुची तो मु 10 गैप नेले एठी 70 आउट टिके बड़ साइज मध्ये ग्राफ आसुची तम देखि परबो 70 एठी 80 और 90 भी हे पाए डोंट पता तो सेही अनुसार हमको कोन करिया पड़े assumption नबा पड़े next what the thing here one thing is there एठी तुमको गोटे जिंस नुवा जिंसटा जोटा हमें प्रीवियस क्लास रे डिस्कशन करिने सेटा कहबा पई चाहूची mark here one is symbol is there when we are plotting class interval in x axis रे class interval जो plot करूछे हमर स्टार्ट हे एठी जो क्लास इंटरवल स्टार्ट हे देखो 40 रु स्टार्ट हे ओके 40 रु स्टार्ट हे मु एठी गोटे सिंबल यूज करिछि टिके मार्क कर हियर इज अ सिंबल व्हाट इज दैट सिंबल टिके ब्रेकिंग देयर इज अ सिंबल ऑफ ब्रेक सिंबल माने एठी लाइन टा टिके ब्रेक करा जाय व्हाई आई एम ब्रेकिंग हियर आई एम नॉट ब्रेकिंग इट इज अ प्रिंसिपल इन स्टैटिस्टिक्स जेतेबेले 40 रे आरंभ होछि देखो ଆଉ ଆମେ ଏଠି ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ ନେଇଛେ କ୍ଲାସ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ର ଗ୍ୟାପ ଟା ଏଠି ନିଆ ଯାଇଛି 5 5 ଗ୍ୟାପ ନେଇଛେ ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ 5 5 ଗ୍ୟାପ୍ସ ଆର देयर एंड स्टार्ट्स फ्रॉम 40 और प्रत्येक ग्याप ये सब समान एठी एतिकी समान ग्याप से समान ग्याप ଆମେ अज्यूम କରିଛୁ ଏଟା ପ୍ରକୃତରେ ସମାନ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏଉଠୁ ଏତିକି ମଧ୍ୟ କଣ 5 ହବ କି ଏଠି ଯଦି ଆମେ origin means there is zero when origin ଯୋଉଠୁ ଆମେ start ହଉଛେ ସେଠି zero ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ mathematically origin means zero ରୁ start zero is the origin okay ଏଠି ଯେତେବେଳେ zero ରୁ ଅର୍ଥାତ ଏଇଠି 40 gap ଆଉ here 5 5 gap it is not right ठीक हवा कथा नहीं and in order to make these things clear it हमको क्लियर करा दिए ए जो by using this symbol हमें क्लियर करूछे
जे एठी जो हम एज्यूम करछे 40 स्टार्ट होछ और एठी 45 एठी जो 5 गैप अछि हियर इज आल्सो नो 5 गैप एठी 5 गैप सेमति किछि नाही सेति पय हम ब्रेक कर दो टिके लाइन को टिके ब्रेक सिंबल दे देले इज मोर क्लियर एंड मोर एक्यूरेट ओके तेना हमें चाहिए हमें यूज करि पारिबा यूज न कले जे भूल हे जिवो नुहे हमें ए भली साधारणतः मैक्सिमम बुक्स रे न थाए सीधा सड़क 40 45 रु आरंभ हुए इवन खाली जो 40 रु स्टार्ट में बेले बेले 100 रु स्टार्ट हो बेले बेले 8000 बा 800 रु स्टार्ट होची जदी एठी 800 लिखिबा स्टार्ट करबा 808 लिखिबा आ एठी 900 900 तापरटा आसे तापरे 1000 आसो अर्थात ये प्रत्येक 100 गैप बोले हमें धरिबा so here from 0 to 800 it is not 100 gap and in order to make this gap से gap टाको make करिया पाए हमें एठी गोटे ब्रेकिंग सिंबल टे देखि आउ टिके क्लियर विजिबल पाए मु तुमको एठी एग्जांपल टे दउछि ओके एठी गोटे क्लियर हिस्टोग्राम ड्रा करा जाय छै देखो ए हिस्टोग्राम रे देखो स्टार्ट हे छै कोठु स्टार्ट हे छै इट इज स्टार्ट फ्रॉम 100.5 to 110 100.5 to 110.5 then 120.5 130.5 140.5 150.5 एबोली भाबरे अछि ये प्रत्येक 100 गैप रहछि but here is it 100 gap it is not 100 gap तो एठी सेथे पई एठी करा जाउछि that is a symbol is used break symbol okay a symbol hame we can use the symbol when we using class interval in x axis रे जते बळे करूछि हमें ए भଳି symbol दबा but not in y axis रे always origin we are assuming origin is 0 then from that onwards we will plot the number okay am I clear this is some doubts when now it is clarified regarding histogram को नेकी जहा तमरा डाउट ला मु भाबुछि मु क्लियर करछि जदी किछि आउ डाउट्स रही छि मते पछारे पारिबो बा क्वेश्चन कर पारे ओके लेट अस स्टार्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नेक्स्ट ग्राफ इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमें हिस्टोग्राम पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जानिबा दरकार और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन काहको कुआ जाय फर्स्ट ऑफ ऑल टू नो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जानिबा पूर्व फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज अ पॉलीगॉन ओके ताचे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दुटा वर्ड तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कौन जानिबा पूर्व वी मस्ट नो व्हाट इज पॉलीगॉन पॉलीगॉन काहको पॉलीगॉन जानना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन the first point I have mentioned here that a polygon is defined as many sided figure जो फिगर many side अछि बहुत गुडे साइड अछि हमें ताको पॉलीगॉन कहबा फॉर एग्जांपल many sided figure जदि मथे ड्रा करबी varieties of figure will be there many sided figure more than one side is there or it is not clear many sided figure here is a side पार्श्व बहुत गुडे पार्श्व जा रही है गोटे साइड here is a side here is a side 1 2 3 4 5 sides are there this can be many sided figure okay or many sided figure ଆମେ ତାକୁ draw କରିପାରିବା this is the many sided figure ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡେ साइड ଥିବ different ବହୁତ ଗୁଡେ angles ବି ଥାଏ एमती भी हमें ड्रॉ कर परिबा many sided figure this can be a many sided figure different okay it's not clear but it is many sided figure okay this is what is many sided figure then what other things is there polygon हमें कहा को कहरे ना polygon is a many sided figure बहुभुज ओडिया रे तमे कहछो बार बहुत गुडिए भुज माने बाहु से होछि polygon
Then what is frequency polygon? When a many-sided figure is drawn on the basis of frequencies given in a frequency distribution, the figure is called frequency polygon. कौची जेतबेले आमे एई many sided figure को frequency ऊपर बेस करी frequency distribution को नहीं कि आमे draw करू ताकू आमे कहि परिबा frequency polygon. तो frequency की यूज करके that means in very clear sense रे आमे कहि परिबा and frequency को यूज करी polygon तैयारी करा जाउची ताहाको frequency polygon कुहा जाय. Give one example. This is ମୁଁ आ ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ ପଲିଗନ ର एग्जांपल ଦଉଥିଲି ପଲିଗନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପଲିଗନ ଏଠି ପଲିଗନ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖ ପଲିଗନ କଲେ ଏଟା ପଲିଗନ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ବହୁତ ଗୁଡେ ବାହୁ this is the polygon ଆଉ ଏଇ ପଲିଗନ ଟା କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ନା by using frequency କୁ ନେଇକି ପଲିଗନ ତିଆରି ହେଇଛି frequency ऊपर बेस करके पॉलीगॉन क्रिएट करा जायछि therefore it is called as frequency polygon. Okay, clear what is frequency polygon? Frequency polygon is a many sided figure drawn on the basis of frequency. Frequency को बेस करा जायछि आउ से frequency ଗୋଟେ frequency distribution रथिबो. Okay, जे कोनोसी मन इच्छा frequency नै कि हम कहबा frequency distribution हम पाके frequency distribution हम पढ़ि सारि छै. What is the frequency distribution? What other things about frequency polygon? Frequency polygon विषय आउ कोन जानिबा हम? It is that graphic representation of frequency distribution in which the midpoints of the class intervals are plotted against the frequency. एटा को टेके मने रखो 1 mark question objective type question आसे पारे तो कुछ frequency polygon रे ये सही प्रकार graphic representation in which midpoints of the class intervals are plotted against frequency. Class interval रो गोटे midpoint अछि केमती midpoint calculation भी हम तुमको बुझे देबे से class interval रो midpoint frequency against रे यूज करा छै. हमें तो हिस्टोग्राम पढुथले मन पका आमे क्लास इंटरवल अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी नौथले अर्थात x एक्सिस रे क्लास इंटरवल y एक्सिस रे फ्रीक्वेंसी. But here in case of frequency polygon we are using midpoint in x axis and frequencies in y axis. माने हमको midpoint प्रथमे काढिबा को पड़िबो and how to calculate midpoint, let me give the formula. Midpoint काढिबार formula होची देखो lower class limit plus upper class limit divided by 2. एटाला L हमें in short कहि पारिबा L plus U divided by 2. Okay, in short एटा clarity रे लेखा है clear भाବରେ लेखा है lower class limit plus upper class limit divided by 2. हमर class interval रे दीटा limit रहउछि ओटा lower class limit रहउछि ओटा upper class limit रहउछि आमे दीटा जक मिसे दबा डिवाइडेड बाय 2 कर देला हमरा मिड पॉइंट मध्य बिंदु ओडिया रे कोइ जाउछि मध्य बिंदु पाए. ओके, टेक द एग्जांपल गोटे एग्जांपल हम नबा केमती हमें मिड पॉइंट काढबा एटा गोटे एग्जांपल अछि क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया जायछि. आमे एठी कोन करबा ए क्लास इंटरवल को फोकस कर क्लास इंटरवल रे हमको कोन करबार अछि ए क्लास इंटरवल रे ही मिड पॉइंट एठी गोटे लोअर लिमिट अछि upper limit is each class interval having lower limit upper limit lower limit upper limit lower limit upper limit there is a lower limit upper limit हमर काम कोन फार्मूला कोन अछि L plus U divided by 2. ओके, तो प्रत्येक क्लास रे गोटे L अछि गोटे U अछि यदि फर्स्ट क्लास इंटरवल जे एटा अछि 0 0 plus 10 divided by 2. So 10 divided by 2 that is 5. Here in second class interval 10 plus 20 divided by 2. So 20 plus 10 is equal to 30. 30 divided by 2, 15. So similarly we can find out the class interval. I have sorry midpoint. ମୁଁ already midpoint तमरा एठी काढी के तम पई इजी हबा पई बुझिबा पई रखि देछि. तो
प्रत्येक क्लास इंटरवल रो हमको मिड पॉइंट काढबार अछि। देखो फर्स्ट क्लास इंटरवल रो मिड पॉइंट 10 0 plus 10 divided by 2 is 5. Here 10 plus 20 divided by 2 is 15. Here 20 plus 30 divided by 2 is 25. Here 30 plus 40 divided by 2 is 35. Here 40 plus 50 divided by 2 is 45. Okay. आमे एते करबा अपेक्षा हमको आखि बंद करके मधे मिड पॉइंट लेखि हेजो जेता आमे गोटे वन पाउच इट इज 5 it is 15 25 35 45 the class interval is very easy अछि टिके सहज अछि बेले बेले टिके और एडा इवन नंबर रे अछि बोली ऑड नंबर ले पॉइंट पॉइंट आसी जीवो त हमको टिके प्रॉब्लम हो डोंट वरी हमको फार्मूला मन रखिबा that is L plus U divided by 2 lower class limit plus upper class limit divided by 2 okay so एटा पॉइंट काढिबार फार्मूला और हम एभले भाबरे मिड पॉइंट बाहर करे पारे ओके आफ्टर कैलकुलेटिंग मिड पॉइंट सीधा सड़क हमको जिबार अछि टू ड्रॉ द व्हाट frequency polygon before drawing the frequency polygon let me discuss something the frequency polygon हम जत्ता बड़ा डिस्कशन ड्रॉ करेबा हमको केमती प्लॉट करेबार अछि how to plot frequency polygon in which axis what to be plotted and in which axis frequency is to be plotted and in which axis midpoint is to be plotted it should be discussed प्रथमे हमें जानिबा दरकार से कहूची in frequency polygon the frequencies are plotted in vertical axis o y रे frequency एटा as usual histogram रे जेमती frequency थिला o y axis रे frequency polygon रे मध्य o y axis रे बा vertical axis रे frequency रहे but one thing is different from histogram गोटिए कथा different सेठी हमें क्लास इंटरवल यूज करथला बेले कि मिड पॉइंट इज लोकेटेड इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्लास इंटरवल रो जो मिड पॉइंट आसीबो हमें क्लास इंटरवल रो मिड पॉइंट एठी बाहर कले ओके ए जो मिड पॉइंट काढी छी ए जो मिड पॉइंट अछि ए मिड पॉइंट उडी को ही हमें क्लास सॉरी एक्स एक्सिस रे थरो प्लॉट करिया पड़बो कोठी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जेतले यूज करबा हमर एटा दरकार मिड पॉइंट दरकार क्लास इंटरवल इज नॉट सो नेसेसरी most necessary is midpoint okay ସେଥିପାଇଁ ଆଉ frequency as usual histogram रे जेमिति हमें frequency plot करूथिले y axis रे एठी मध्य y axis रे frequency draw करा okay let me draw a here example is there एठी example तमरो दिया है छी एठी mid point देखो mid point x axis रे कोन रखा जाय छी what is there in x-axis it is midpoints are there and in y-axis frequencies are there okay clear frequency polygon में midpoint रहिबो x-axis रे आउ y-axis रे frequency रहिबो but in histogram what class intervals are plotted in x-axis and frequencies are plotted in y-axis clear then start drawing frequency polygon एबे frequency polygon हमको draw करेबार अछि let me give some time to you to write this data in your copy तम copy रे ए data टेको टिके लेखि नियो now I am giving 1 minute to you गोटे मिनिट लागिवो बेसी समय लागिबनी गोटे मिनिट भितर टिके लेखि नि तापर हमें ड्रॉ करबा ड्रॉ करला बेले तुमको बुझिबा पई इजी हो write it down in your note copy this data write down this data in your note copy तमरो नोट खाता रे ए डाटा टेको लेखि नियो तापर मु कोन करेबी ड्रॉ करे कोन ड्रॉ करबा हमें frequency polygon will be drawn okay frequency polygon draw कला बेले बेसी फोकस कहा पर रखिबो मिड पॉइंट रे एठा क्लास इंटरवल फोकस रखिबो नाही focus is there in which in midpoint को ही फोकस करबा ए मिड पॉइंट ता मन रखिबो सब I think you have written in all this data in your note copy let me draw the okay तो ड्रॉ करबा पई हेले हमको
ग्राफ पेपर यूज करार अच्छे मुझे ग्राफ पेपर यूज प्लेन रे यूज करुच्ची तमें किंतु ग्राफ रे प्रैक्टिस करो प्लेन रे किसी कला पर सीधा ग्राफ रे प्रैक्टिस करिवो एक्स एक्सिस ड्रॉ करा जायछि देखो हियर एक्स एक्सिस इज देयर वाई एक्सिस इज देयर आगरो कोहा हैछि हमर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन रे हम एक्स एक्सिस रे मिड पॉइंट नबा और वाई एक्सिस रे फ्रीक्वेंसी नबा ओके मिड पॉइंट देखो प्रथम क्लास इंटरवल मिड पॉइंट 5 अछि ओके तो 5 मिड पॉइंट रे केते फ्रीक्वेंसी छी मिड पॉइंट 5 एंड आल्सो फ्रीक्वेंसी इज 5 तो मते ग्राफ जेतोले यूज करबे एटा प्लेन पेपर मु ग्राफ को माइंड रे रखी कि तुमको बुझौछि तो मते सीधा 5 जो 12 टा नेबी ओके देन 11 नेबी नहीं सॉरी एठी मु तुमको 12 दबार एग्जांपल सॉरी 12 नबा दरकार नहीं हमको भाब से सीधारे लक्ष्य रखी कि जीबी आउ फ्रीक्वेंसी साइड रे 5 सीधारे लक्ष्य रखी कि जीबी और सेठी जो इंटरसेक्ट हेथियो ए जगह जो इंटरसेक्ट हेथियो जो हमर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन मन रखो जोठी इंटरसेक्ट हेथियो सेठी गोटे बिंदु देबी ओके मु ऑलरेडी एठी बिंदु दे देछि हमको इजी हवा पाई दिस इज द point where both horizontal and vertical line is plotted okay ये पांच हमरो midpoint 5 and frequency is 5 second class interval रो midpoint केते था 15 okay 15 रो केते अछि हमरो frequency 11 अछि तो 11 मु कोड पाइबे just 10 रो जस्ट ऊपर रहिबो 11 पॉइंट हमर खोजिबार अछि मन रखो मु frequency रे केते केते गैप रखिछि 5 5 गैप रखिछि हियर द गैप इज 5 5 10 15 5 10 15 20 25 30 35 40 45 जेहेतु हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मोर 45 थिला ए क्लास इंटरवल रे मते 5 5 गैप नेछि तमे 10 10 गैप मध्य नै पारिबो जोटा तुमको सुविधा हबो और जो इन व्हिच द ग्राफ इज मोर क्लियर जो क्लियर हबो सेटा को अचीव करबो ओके କିନ୍ତୁ ଏଠି 1 2 3 4 ଯଦି ମୁଁ ନେବି ଗ୍ରାଫ ତାହେଲେ ମତେ ବହୁତ ବଡ ଗ୍ରାଫ ଦରକାର ବହୁତ ବଡ ଗ୍ରାଫ କରା ହିଁ ଯାଏ ନା ତ ଏତେ ବଡ ଗ୍ରାଫ ପେପର ନଥାଏ ତେଣୁ ଟିକେ ନିଜେ କମନ ସେନ୍ସ ୟୁଜ କରିବ ମତେ କେତେ ଗ୍ୟାପ ନେଲେ ଗ୍ରାଫ ଟି ସୁନ୍ଦର ଭିଜିବଲ କ୍ଲିୟର କ୍ଲାରିଟି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଓକେ ତ ଫର୍ଷ୍ଟ 5 मिड पॉइंट रे 5 फ्रीक्वेंसी पॉइंट पाइगले देन 15 मिड पॉइंट रे हमरो 11 अछि 10 रे जस्ट टिके ऊपर को देखो 10 रे जस्ट टिके ऊपर को हमें एठी उठे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन मिलिबो हम ग्राफ कला बेले तो सेठी जो इंटरसेक्ट पॉइंट आसीबो से इंटरसेक्ट पॉइंट एठी बिंदु इज 15 15 मिड पॉइंट रे 11 what frequency then 25 midpoint रे केते frequency अछि 25 midpoint रे that is 45 25 midpoint रे देखो 45 अछि here it is intersect एठी ग्राफ पेपर सेट हेथिबो ए बिंदुटा होछि हमरो what 45 so 25x and 45y then 35x means next ଆସିବ 35 midpoint 35x and 35 midpoint रे हमरो 25 फ्रीक्वेंसी अछि तो 25 पर्यंत जेबी मते गारो पकेबार नाही मु तुमको खाली ग्राफ पेपर रे एमिति ही गारो थिबो बोली मु तुमको शो करछि हमको गारो आदौ पकेबार नाही हम कोन करबार अछि जस्ट बिंदु प्लॉट करबार अछि जस्ट हमको सेठी इंटरसेक्ट बिंदु पाखरे बिंदु टे प्लॉट करबार अछि हियर मत 35 मिड पॉइंट रे 25 फ्रीक्वेंसी देन 45 मिड पॉइंट रे 8 फ्रीक्वेंसी 8 10 रे जस्ट टिके तळ को थिबो इटा गारो तळ को थिबो सेठी हमर पॉइंट मते सेठी बिंदु ओनली पॉइंट इज देयर एटा हिस्टोग्राम नुहे हमें बार काटेबार नाही हमको जस्ट बिंदु दबा आउ ऑल पॉइंट्स आर प्लॉटेड जेतेबेले सब पॉइंट हमें प्लॉट करि सारिबा तापर काम कोन होछि ना हमें सीधा सड़क से वी मस्ट add the points in a straight line
स्ट्रेट लाइन करके स्केल यूज करवा स्ट्रेट लाइन कहीं कहूँ मैं चाहिए एमती 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 सब करके भी जोड़ी दे पारिबी एमती जोड़िले ताहा फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन हबो नाही बाय द हेल्प ऑफ स्केल वी मस्ट ऐड और जॉइन दिस पॉइंट्स इस पॉइंट गुडा को जॉइन करिया पड़े एंड सीरियली मस्ट जॉइन मु ता माने नु एठी जॉइन करी तापर एठी जॉइन करी तापर एठी पळेबी एमिति करबा नहीं इट इज नॉट द लाइक दैट serially will join the points. Okay, so here I'm joining, then starts here, then here, then here. Okay, এই ভଳି ভাবে ଆମେ join করি. Okay, is it looks like a polygon? এটা polygon ଭଳି ଦେଖା ଯାଉଛି କି ତମେ ନିଜେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ analysis କର ମୁଁ ତ point ଯୋଡ଼ିଦେଲି point ଟା polygon ଭଳି ତ ଦେଖା ଯାଉନି କାହିଁକି ଦେଖା ଯାଉନି where is the कोठी कमी रही जाउछि where it lacks कोन लैक करूछि हमें देखिबा कोन लैक करूछि एठी से कहूछि since a polygon is a complete figure polygon हो जोटा complete figure बहुभुज हमें कहूछे हम जो बहुभुज रे बोलले बहुभुज हो complete अर्थात मुझे यदि बहुभुज करिबी से पूरा कंप्लीट हबो माने तार घर कोठी से आधार ब्रेक हो नथिबो इट इज अ कंप्लीट फिगर since a polygon is a complete figure its end should touch the baseline तार end ता baseline रे touch करिबा दरकार and for this purpose at each end of the distribution शेषर distribution रो शेषरे हमको assume करिया पड़िबो one additional class interval with zero frequency अर्थात हमको शेषरे आ पूर्व जो हमें कले ए जो क्लास इंटरवल टा हमें एबे तयारी कले अर्थात फ्रिक्वेंसी कहूँ कौन ना कंप्लीट फिगर एटा कंप्लीट हेनी अर्थात हाँ उड़ी की रही फिगर टा कंप्लीट केते बेले हो ना हमको बोथ साइड रे वन वन क्लास इंटरवल एक्स्ट्रा नबा को पड़िबो आउ ताको जीरो फ्रिक्वेंसी बोली भाबी की कोन करिया को पड़िबो अज्यूम करके ताको जोड़ीबा को पड़िबो एठी एमिति जोड़ीबी ओके ए बिंदु टको एपट एंड रे जोड़ीबी अर्थात एठी 55 में जीरो फ्रिक्वेंसी अछि बोली जीरो 55 बोली कहीं रखी ना कौन से पिला 55 रखी ना कि कौन से पिला एपटे हमरो जीरो रखी ना जीरो में कहीं पिला जीरो रे ना बोली मैं एठी जोड़ी तो जेतेबेले मैं कंप्लीट फिगर को जोड़ीबी तापरे मते एटा फ्रिक्वेंसी आमे आपको कहबा वर्तमान फ्रिक्वेंसी पर नाउ इट इज कॉल्ड एज फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ओके बिफोर इट इज नॉट फ्रिक्वेंसी एटा फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं पॉलीगॉन केतेबेले होबो जेतेबेले फिगर टी कंप्लीट हबो एथिरे सब बाहु गुड़िक आबद्ध क्षेत्र में ओडिया जोटा कहै आबद्ध क्षेत्र टी आबद्ध होएनी क्षेत्र टी ब्रेक हो जायछि so it is not frequency polygon when we complete the figure by adding in both side epot side रे गोटे फ्रिक्वेंसी अछि हमको अज्यूम करिया पड़बो एठी जीरो फ्रिक्वेंसी एठी मध्य जीरो एटा तो जीरो एठी जीरो फ्रिक्वेंसी एठी तो जीरो फ्रिक्वेंसी ना एठी तो जीरो फ्रिक्वेंसी रहउछ ना ए 11 टा होछ हमर जीरो फ्रिक्वेंसी तो एठी गोटे जीरो फ्रिक्वेंसी रो ऐड अज्यूम करिया पड़ो एठी मते जीरो फ्रिक्वेंसी अज्यूम करके हमें को जोड़ी ओके क्लियर so this is about what called as frequency polygon एटा तो हमें जानले हां आ गोटे थिंग नेक्स्ट आ गोटे जिंस frequency polygon can be drawn on histogram ऊपर मध्य हमें frequency polygon draw करि पारि ओके कारण आमे frequency polygon रे कोन करूछि ना क्लास इंटरवल रो मिड पॉइंट नउछि आमे मिड पॉइंट ता कोठु पाउछि क्लास इंटरवल रो पाउछि और प्रत्येक क्लास इंटरवल रो मझी के होछि तार मिड पॉइंट तो प्रथमे यदि आमे हिस्टोग्राम ड्रॉ करि सारिछे आ हिस्टो हमको मिड पॉइंट बाहर करबार नहीं सीधा सड़क कोन करबा प्रत्येक हिस्टोग्राम रो मझिरे गोटे गोटे बिंदु दे दबा ओके से बिंदु को कोन करबा जोड़ी दबा ताहाले से हमर कोन होई जेबे फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन होई इट इज वेरी इजी जते बेले हमर बेले बेले क्वेश्चन आसे एग्जाम रे ड्रॉ ए फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम ऊपर फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ तो हमें हिस्टोग्राम प्रथमे
ଶିଖି ସାରିଛୁ, ଜାଣି ସାରିଛୁ। ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ ସିଧା ଡ୍ର କରିବା, ଆଉ ମିଡ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତମ୍ଭର ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ବାର ବାର ବୋଲି କାଲି ପଢୁଥିଲେ, ବା ସ୍ତମ୍ଭ କହିବା, ସ୍ତମ୍ଭର ମଝିରେ ମିଡ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ବିନ୍ଦୁଟା ବା ମିଡ ପଏଣ୍ଟକୁ ପଏଣ୍ଟ କରିବା, ଆଉ ସେ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ସେଟା frequency polygon ହୋଇପାରେ. Okay, am I clear? So this is about today's class. We have already clarified doubts regarding some doubts regarding histogram, and also discussed what is frequency polygon and how to draw frequency polygon. Okay, let me back to the class. Whether it is clear to you or not, you may ask me if any doubts are there. ଯଦି କିଛି doubt ଅଛି ତ ମତେ ପଚାରି ପାର. ଯଦି doubt ପରେ face କରୁଛ, when I am giving assignment and you are practicing that assignment, then that time also you may ask me the question. Okay. You may ask the doubt if there is any queries. On queries ଅଛି ପଚାରି ପାର. ଯଦି କିଛି queries ନାହିଁ, if there is no queries, no doubts, you may leave the class. Let me close the class. Thank you very much. Okay.